माननीय अध्यक्ष, I welcome all the members of the 36th Youth Parliament session and hope this session will be fruitful. Let us begin today's session with the oath or affirmation of the newly elected members. Secretary General, please. Ms. Hardeep Kaur, who stands elected from Ludhiana constituency of Punjab, will take oath or affirmation. Ma'am, would you like to take an oath or affirmation? Affirmation, please. In which language would you like to take the affirmation? Punjabi, please. मैं हरदीप कौर 36वीं यूथ पार्लियामेंट की 36वीं मेंबर चुनी गई हाँ। मैं सौ खानिया कि मैं कानून के अनुसार भारत के संविधान अते सच्ची श्रद्धा अते वफादारी का समर्थन करांगी। मैं भारत की प्रभुसत्ता अते अखंडता नूं बरकरार करांगी अते जिस कर्तव्य विच मैं दाखिल होण जा रही हाँ उसनूं ईमानदारी नाल निभावांगी। Mr. Jyotirmay Banerjee, who stands elected from Howrah constituency of West Bengal, will take oath or affirmation. Mr. Jyotirmay Banerjee. Sir, would you like to take an oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Bengali. আমি জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি 36তম যুব সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি পোষণ করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করতে চলিতেছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। জয় হিন্দ। इसमें इसको घुमा देना थोड़ा ये भी चाहे जो लोग देख रहे हैं ना वो प्लस जो बच्चे हैं एक दो बार घुमा दोगे बीच बीच में जैसे अब यहाँ कुछ नहीं हो रहा ना ऐसी शांति है ना तो उसके बीच में घुमा दो ठीक है Honorable members, as we meet today, it is my duty to inform the House of the passing of an exceptional individual, Dr. Ranjit Mukherjee, who passed away after a prolonged battle with a severe lung infection. Dr. Mukherjee was a remarkable figure whose contributions resonated deeply within and beyond these esteemed halls. He was a great scholar, a distinguished alumnus of the 28th and 30th Youth Parliament sessions, where he first showcased his extraordinary oratorical skills that would define much of his public life. Dr. Mukherjee's passing is a significant loss to our nation. He was a beacon of dedication, service and inspiration. On the behalf of the entire House, I extend our deepest condolences to his family, friends and all those whose lives we touch. May his soul rest in peace. Honorable Speaker Ma'am, I rise to pay my tribute to Dr. Ranjit Mukherjee. His death is not only a great loss to his family, but for the whole nation. Beyond his parliamentary engagements, Dr. Mukherjee was an eminent social worker, dedicating his life for the betterment of the society. His passion lays particularly in the upliftment of tribal youth and women. His efforts touched countless lives and left an indelible mark on the communities he served. I wish to express my condolences to bereaved family. Om Shanti. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं स्वयं आपके द्वारा एवं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने दल व सदन को संयोजित करती हूँ। डॉक्टर रंजीत मुखर्जी का निधन हमारे देश
और हमारे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी समाज सेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने संपूर्ण विपक्ष दल को संयोजित करती हूँ। The House may stand for a while in silence to express our deep sorrow. Over. Honorable members, it's a pride moment for our nation that India has marked its historic presence on International Space Station. Group Captain Subhanshu Shukla became the first Indian astronaut to visit the International Space Station as part of the Action Mission 4. ISRO has sponsored this event. He had been on space station for 18 days and came back on Earth on 15 June 2025 safely. This success has opened the way for whole universe to our nation. We heartily congratulate the ISRO team and Subhanshu Shukla for their great efforts and our nation for this grand success. Secretary General may convey the message of our greetings to Indian Space Research Organization. Yes, ma'am. Prime Minister will use women ministers, please. Honorable Speaker, Madam, I would like to introduce the new ministers to you and to the House and to my colleagues. Shri Divyanshu as the Minister of Civil Aviation. Ms. Tejaswi Tiwari as the Minister of Railway. Now let's begin the question hour. Start question number 101. Ms. Vijayalakshmi, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हमारी सरकार का एक महत्वाकांक्षी स्वप्न है। परंतु क्या यह सपना केवल कागजों पर है या इसकी नींव वास्तविक प्रगति पर टिकी है? आजादी के 100वें वर्ष तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, जहां प्रति व्यक्ति आय $20,000 हो, सुनने में तो बहुत सुहावना लगता है। लेकिन क्या हम उन आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर कर पा रहे हैं जो इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा है? महोदया, वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी युवाओं की बेरोजगारी दर 16.3% है और एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जब हमारे युवाओं का एक बड़ा वर्ग हाशिए पर है और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है, तो आप किस आधार पर ये दावा करते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे? महोदया, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी डिजिटल विभाजन को कम करना अत्यंत आवश्यक है। देश में अभी भी लोगों में डिजिटल साक्षरता का अभाव है। आपकी सरकार ने सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या समयबद्ध योजनाएं बनाई हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा विकसित भारत के स्वप्न पर उठाए गए प्रश्नों का स्वागत करती हूँ। ये सत्य है कि ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, परंतु एकमात्र कागजी सपना नहीं बल्कि एक स्वीकृत योजना और प्रतिबद्धता पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी के आंकड़े चाहे वे किसी भी सर्वेक्षण से लिए गए हो, एक तात्कालिक स्थिति को दर्शाते हैं। हमारी सरकार ने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए बहुआयामी रणनीतियों पर काम किया है। हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय और रोजगार सृजन दोनों ही इस लक्ष्य के केंद्रीय स्तंभ हैं। हमने मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हुए हैं। उदाहरण के लिए PLI स्कीम के अंतर्गत ही अगले 5 वर्षों में 60 लाख से भी अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना के तहत हम गरीबों को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। इन सामाजिक सुरक्षा जाल के साथ हम आर्थिक विकास को गति देकर समावेशी विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। विकसित भारत
केवल एक आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का भी पर्याय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल विभाजन को पाटना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अनेक पहल की है। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत हमने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है। डिजिटल साक्षरता के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा के अंतर्गत अब तक लाखों ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर किया गया है। महोदया, ये झूठ है। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल और स्वयं जैसे ऑनलाइन माध्यमों से हम कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ई-निवासी सेवाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे नागरिक अपनी आवश्यकताओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कर सके, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़े हैं। हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि विकसित भारत की यात्रा में कोई भी लक्ष्य पीछे ना छूटे व सभी को समान अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। हम विश्व के चौथे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक हैं, विश्व के तीसरे सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल हेडसेट उत्पादक हैं और विश्व के नंबर 1 डिजिटल शक्ति है। विश्व का कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48% भारत में ही होता है। इतना तो अमेरिका और चाइना में मिलाकर भी नहीं होता। हमने ही चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव को सबसे पहले छुआ है। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त आंकड़ों से हम विकसित भारत की छवि को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं और 2047 तक हम भारत को विकसित भारत में बनाने में निश्चय ही सफल होंगे। Supplementary question, Ms. Simran Tiwari, please. किस मुंह से कहूँ हम इस दौर के रहबर, किस मुंह से कहूँ हम इस दौर के रहबर हैं, जुल्मत है अंजुम नज़र। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारे देश का किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यवसायी आज भी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, तो क्या आपने समावेशी विकास के लिए कदम उठाए हैं? फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का ये कहना कि विकसित भारत की अवधारणा केवल कुछ चुनिंदा शहरों व वर्गों तक ही सीमित रह जाएगी निराधार है। हमारी सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास है और ये हमारी नीतियों में परिलक्षित होता है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सीधा उनके खातों में आर्थिक व्यवस्था पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। छोटे व्यवसायों के लिए भी मुद्रा योजना के अंतर्गत हम बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लाखों नए उद्यम स्थापित हुए। हमने ग्रामीण और शहरी खाई को पाटने के लिए भी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, चाहे वह सड़क, रेलवे या डिजिटल कनेक्टिविटी हो। हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि विकसित भारत का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और कोई भी हाशिए पर ना रहे। हम जानते हैं कि वास्तविक विकास तभी होता है जब समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी सशक्त महसूस करता है। No more supplementary question, please. Start question number 102, Ms. Shreya Dubey. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरणीय स्थिरता विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मैं पर्यावरण मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ हम पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम करेंगे? प्रदूषण नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी क्या रणनीति है, ताकि विकास केवल कागजों पर न रहकर बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ एवं स्वस्थ भविष्य की सुनिश्चित। Minister of Forest and Environment, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरणीय स्थिरता विकसित भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अंधाधुंध विकास में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने मिशन लाइफ अर्थात लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसी पहले शुरू की हैं, जिसने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को बढ़ावा दिया है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने असाधारण प्रगति हासिल की है। हमने वर्ष 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमने विभिन्न योजनाएं और प्रोत्साहन दिए हैं,
जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी पहले शुरू की गई हैं और उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू किए हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर न हो, बल्कि वह सतत और पर्यावरण अनुकूल हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य मिल सके। Question number 103, Ms. Yashi Singh. अध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए युवाओं को रोजगार देना सबसे अहम है। सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और कौशल विकास की कमी एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के बावजूद युवा रोजगार में भटक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ने इस बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या कोई नई नीतिगत पहल की है, या हम केवल पुराने वादों के भंवर में घूमते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष, भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME का विकास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परंतु आपकी सरकार ने क्या MSME को सशक्त बनाने और उनके लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र विकसित करने हेतु क्या नई समयबद्ध कार्य योजना बनाई है? Minister of Commerce and Industry, please. अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे संबंधित प्रश्नों का सदन में सम्मान करता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में हमारी सरकार निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं युवा सशक्तिकरण ही राष्ट्र शक्तिकरण की पहल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा बेरोजगारी दर के आंकड़े अक्सर किसी विशेष आर्थिक परिवर्तनों से ही प्रभावित होते हैं। हमारी सरकार युवा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मानती है। इसके लिए हमने अपनी मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर नई नीतियां, नई पहले, नए इरादे के साथ अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि 23 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चालू की गई मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक वैश्विक निर्माण केंद्र बना रहा है, जिससे एक बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके। प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव की स्कीम में 1400 से अधिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष से गुजारिश करता हूँ कि अपने कान के पर्दे वे अवश्य खोलें, क्योंकि इसके बाद जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो इस सदन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्कीम के तहत आने वाले 5 सालों में करीब 60 लाख से अधिक, मैं सदन को पुनः अवगत करा दूं, आने वाले 5 सालों में 60 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवन तंत्र का निर्माण किया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। मुद्रा योजना के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें लाखों लोग स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तहत युवाओं का उद्योग प्राकृतिक से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को ये बात बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ अपने युवाओं को नौकरी की भट्टी में फेंक के आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं इस बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं मंत्री जी। Please be seated. You may continue. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने युवाओं को यह आश्वासन देता हूं कि आने वाले सरकार के कार्यकाल में हम अपने युवाओं को न केवल नौकरी करने वाला बनाएंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर नौकरी प्रदान करने वाले भी बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोत MSME को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने MSME के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कोविड-19 के दौरान मदद मिली है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल MSME की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे उन्हें बाजार तक सीधी पहुंच मिल रही है। इसके अतिरिक्त MSME के लिए तकनीकी यूनियन और कौशल विकास योजना
को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है MSME को केवल स्थानीय बाजार तक न नियमित रखा जाए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हम इसे बढ़ा सकें। Supplementary question, Ms. Garima Tiwari, please. ये जुल्म के अंधेरे तो छाए रहेंगे, सूरज तो निकलेगा पर आंखें कब तक झुकाए रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब हमारे लाखों शिक्षित युवा अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार न पाकर हताश हैं, तो क्या हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश को एक अभिशाप में बदलने जैसा नहीं है? आपके मंत्रालय की क्या विशेष पहल है? मैं पूछती हूँ, आपके मंत्रालय ने क्या किया है जिससे इस हताशा को आशा में बदला जा सके और युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप सम्मानजनक रोजगार मिल सके? माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष की इस भावनाओं का समझता हूँ। युवाओं में हताशा न आए, इसके लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केवल रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर रही है, बल्कि उनकी गुणवत्ता अनुसार उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। हमने उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा नीति के बीच बनी खाई को नई शिक्षा नीति से बांटा है, इसके अनुरूप कौशल प्राप्त हो सके। हमने कई ऐसे नए इंस्टीट्यूशन, कई नई स्कीम्स को चालू किया है, जिससे युवाओं में जोश है और नए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना जैसे पहले की हैं, जिससे उद्योग में ऑन द जॉब प्रशिक्षण के अवसर बढ़े। हमारा लक्ष्य है कि हमें एक ऐसी परिस्थिति को तंत्र बनाना है, हमें एक ऐसी परिस्थिति का तंत्र बनाना है जहां हर युवा अपनी क्षमता को पूरा कर सके और उसे सम्मानजनक रोजगार मिल सके, ताकि हमारा भारत देश पूरे विश्व में एक अलग विकास कर उठे। Start question number 104. Ms. Samriddhi, please. अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 देश के शैक्षिक परिदृश्य में एक क्रांति लाने का वादा करती है, जिसका उद्देश्य वृत्तांत विद्या से हटकर आलोचनात्मक सोच और कौशल विकास पर जोर देना है। केंद्रीय विद्यालय KVS को इस नीति के सफल क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, परंतु क्या वास्तव में केंद्रीय विद्यालय NEP के मूल सिद्धांतों को आत्मसात कर पा रहे हैं? NEP 2020 के तहत बाल वाटिका जैसे महत्वपूर्ण कदमों की बात तो की गई और कुछ केंद्रीय विद्यालयों में इसे प्रायोगिक स्तर पर भी किया गया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सभी केंद्रीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध है? केंद्र विद्यालयों में कौशल विकास के प्रावधान को किस प्रकार लागू किया जाए? क्या वास्तव में छात्र छात्राओं को विविध व्यावसायिक विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या यह केवल कुछ पारंपरिक पाठ्यक्रमों तक ही है? कृपया ठोस आंकड़ों के साथ क्रियान्वयन की प्रगति पर प्रकाश डालें। Honorable Minister of Education, please. अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के क्रियान्वयन पर उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा। NEP 2020 महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के शैक्षिक भविष्य का खाका है। केंद्रीय विद्यालय इस परिवर्तनकारी यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह कहना सरासर गलत होगा, मैं फिर से कहता हूँ, यह कहना सरासर गलत होगा कि NEP केवल कागजों पर अच्छी दिख रही है और जमीनी स्तर पर इसका विस्तार धीमा है। NEP 2020 का क्रियान्वयन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। बाल वाटिका का परिचय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के सभी सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका को 400 से अधिक विद्यालयों में प्रायोगिक तौर पर सफलतापूर्वक शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य बच्चों को खेल आधारित शिक्षा और पूर्व प्राथमिक स्तर पर एक मजबूत नींव प्रदान कराना है। हाँ, यह सच है कि सभी KVS में इसे एक साथ लागू करने के लिए ढांचागत सुविधाओं एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। नए भवनों का निर्माण एवं बुनियादी ढांचे का उन्नयन निरंतर जारी है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए हमने निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट जैसे कई व्यापक कार्यक्रम चलाए हैं, जिसके तहत
शिक्षकों को एनईपी के सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी केवीएस में उच्च गुणवत्ता वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनईपी 2020 में व्यवसायिक और कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रम में लागू करना एक क्रांतिकारी विषय है। केंद्रीय विद्यालयों में इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। कक्षा 6 से ही छात्रों को विभिन्न व्यवसायिक कौशल पाठ्यक्रमों से अवगत कराया जा रहा है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, कला एवं विभिन्न शिल्प शामिल हैं। हमने उद्योग और कौशल विकास संस्थानों के साथ साझेदारी की है ताकि छात्रों को व्यावसायिक दुनिया का अनुभव मिल सके। समग्र शिक्षा अभियान के तहत व्यावसायिक शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि की गई है और केवीएस को आवश्यक उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ केवीएस ने स्थानीय उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि छात्रों को इंटर्नशिप एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के अवसर मिल सके। हमारा उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार कराना है ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। Supplementary question, Ms. Priya Dwivedi, please. हर शख्स से हाँ महवे खुदी है मंजिल कहाँ ढूंढे, हर शख्स से हाँ महवे खुदी है मंजिल कहाँ ढूंढे, हर राह गुजर पर अजनबी है कारवा कहाँ ढूंढे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनईपी 2020 शिक्षकों के सतत व्यवसायिक विकास पर बहुत जोर देती है। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उचित संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों के बिना कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। Honorable Minister of Education, please. अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि शिक्षकों के बिना कोई भी नीति सफल नहीं है। एनईपी 2020 शिक्षकों के सशक्तिकरण और सतत व्यावसायिक विकास पर अत्यधिक जोर देती है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कई व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लाखों शिक्षकों को अनुभवात्मक शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा एवं मूल्यांकन के नए तरीकों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं एवं ऑनलाइन मॉड्यूल का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत वे नवीनतम शिक्षा पद्धतियों से अपडेट रहें। No more supplementary question, please. Start question number 105. Ms. Maria Zubair, please. Madam Speaker, as India rapidly embraces digitalization, a sinister shadow looms large: the alarming surge in cybercrime. While we champion Digital India, our citizens are increasingly becoming the victims of sophisticated online frauds. The data for 2024 reveals a frightening reality, demanding urgent and effective action from the government. Madam Speaker, according to the recent reports, India lost a staggering 22,812 crore to cyber crimes in 2024, nearly the 3 times amount lost in 2023. Cybercrime complaints surged to 19.18 lakh in 2024, with financial frauds dominating. Madam Speaker, through you I would like to know from the Minister of Electronics and Information Technology, are our investigating agencies competent enough to get control over the increasing cybercrime? If yes, what concrete, impactful and swift measures has your ministry taken to curb this menace, particularly in the region where digital literacy is low? Minister of Electronics and Information Technology, please. Madam Speaker, I acknowledge the concerns raised by the opposition regarding the rising issues of cybercrime. This is indeed a critical area, and our government is fully committed for creating a secure and resilient digital ecosystem for citizens. We recognize the evolving nature of these threats and are taking proactive measures. Honorable Speaker, the figures on financial losses are indeed alarming, and we are taking this issue with utmost seriousness. The figures on financial losses are increasing because of increased reporting and greater digital adoption. But it also reflects, I repeat, but it also reflects the growing sophistication of cybercriminals. To combat this menace, my ministry, through the Indian Cybercrime Coordination Center, I4C, has established a national helpline number 1930 and a portal
www.cybercrime.gov.in for citizens to report cyber financial frauds. Madam Speaker, this has led to the blocking of over rupees 1,000 crore of fraudulent money. I repeat, this has led to the blocking of over rupees 1,000 crore of fraudulent money in 2024 through timely intervention. Madam Speaker, we are working closely with financial institutions and law enforcement agencies to create a robust mechanism for real-time reporting and freezing of defrauded amounts. Furthermore, ladies and gentlemen, we are focusing on public awareness campaigns like Cyber Jagrita Divas to educate citizens, especially in rural and semi-urban areas, about common cyber frauds and safe online practices. Capacity building for law enforcement agencies is a continuous process, with training being imparted on cyber forensics and investigation techniques. Start question number 106. Ms. Vaishnavi Goswami, please. Madam Speaker, the safety and security of women and children are fundamental to a civilized society and a nation's progress. Despite various initiatives and laws, the increasing numbers of crimes against women and children in our country remains a deeply distressing reality. It is a stark reminder that while we speak of development, a significant portion of our population lives in fear. Madam Speaker, while some isolated reports indicate a decline in certain crime categories in specific regions, the overall cumulative figures for crimes against women and children remain tragically high, with 12,45,037 cases against women and 4,40,384 cases against children from 2020 to 2022, according to the NCRB data. Speaker Madam, through you, I would like to ask the Minister of Women and Child Development that what comprehensive and quantifiable national strategies has your ministry implemented to safeguard our nation's women and children? And what is the measurable impact of these initiatives on all grounds across all states and union territories, especially in areas with persistently high crime rates? Minister of Women and Child Development, please. Madam Speaker, while the figures you mentioned are indeed a matter of deep concern, but we must also recognize that the rising part of participants are increasing because they are now more aware and have trust in the system. I repeat, have trust in the system. That in itself shows progress. But we are also not sitting back. My ministry is working with a strong, multi-layered national plan to tackle the very roots of violence against women and children. So that safety is not just a right on paper, but a lived reality for each and every citizen of the nation. We have strengthened the legal frameworks, including the Criminal Law Amendment Act 2030 and the POSCO Act 2012, with stringent penalties. माननीय मंत्री जी, One-stop. आप स्वयं एक महिला हैं, पर क्या आपको नहीं पता कि महिलाओं के साथ क्या सुरक्षा हो रही है? इस देश की बेटियां हमारी बेटियां हैं और आज मैं सबके सामने ये दावा करती हूँ कि इन बेटियों पर आज समय आने दूंगी न चाहूंगी। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से हम गुमराह होने वाली नहीं है, कुछ काम करिए। In this process, we have implemented the One-Stop Center OSC scheme, which is present over overall states with a number of 700. I repeat, 700 centers around the nation, providing integrated support to women affected by violence by providing medical aid, police assistance, psychological counseling, and temporary shelter. The Mahila Police Volunteer Scheme is being implemented to bridge the gap between the police and the community. Furthermore, we are focusing on prevention through awareness generation campaigns like Beti Bachao, Beti Padhao, and preventing and promoting gender sensitization from an early age to educational institutions. The measurable impact of these initiatives includes increased reporting, greater access to support services,
and a gradual shift in societal attitude towards gender equality. However, we acknowledge that this is a continuous battle requiring sustained efforts. Supplementary question, Shri Devrish, please. Honorable Minister, the protection of children from Honorable Minister, the protection of children from sexual offences, POSCO Act is crucial. Yet, its effective implementation and pace of conviction remains concerned. While 2,87,000 cases were disposed of by FPCs, including 1,80,000 cases under POSCO Act as of 2024. The sheer volume of pending cases is immense. Madam Speaker, through you, I would like to ask from Honorable Minister what urgent steps is the Ministry taking to strengthen the process of judicial processes. Minister of Women and Child Development, please. Honorable Speaker, the effective implementation of the POSCO Act and the acceleration of trials are top priority for my ministry. While the cases noted by FPCs are significant, we understand the urgency of further reducing dependency to strengthen the judicial process. The government has established 1,023 fast-track special courts. I repeat, 1,023 fast-track special courts, including 398 dedicated FPCs for cases related to POSCO, for speedy disposal of cases of sexual offences. We are continuously monitoring these courts by providing necessary financial and logistical support. Training of judicial officers, public prosecutors, and police forces on the norms of POSCO Act, child-friendly procedures of Indian municipalities. Furthermore, we are leveraging technology to streamline investigation and trial processes, including video conferencing and video conferencing. Further, we are also working on victim and witness protection mechanisms to ensure that those who come forward are not re-victimized during the legal process. Our unwavering resolve is to ensure that judicial process will be very effective for very victims of these serious crimes, and that the perpetrators are prosecuted swiftly and effectively, and giving a clear message that such act will not be tolerated. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों की बातें दिखाकर अपनी सरकार की असफलता छुपाने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। आपने आंकड़ों की बातें दिखाकर अपनी सरकार की असफलता छुपाने का प्रयास किया है। सच सुनिए। अपराधों के बढ़ते हुए मामलों ने तीव्र वृद्धि हुई है। मंत्री जी सुनिए, आप तो स्वयं एक महिला हैं। आपसे उम्मीद है कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें और इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उचित कार्य योजना बनाकर कार्य करें। धन्यवाद। The question hour is over. Honorable Speaker Madam, I am here to highlight a serious breach of privilege by Dainik Bhaskar Patna Edition in its 16 July 2025 publication.
The report on Operation Sindoor is a matter of national. It's not only false and misleading. It's not only false and misleading, but seems deliberately crafted to sensationalize and erode public trust in state institutions. Such type of irresponsible journalism threatens the integrity of our democracy and the dignity of this nation. The report on Operation Sindoor is a matter of national importance. Such type of irresponsible journalism threatens the integrity of our democracy and the dignity of this House. I urge you to allow me to raise this matter formally and request appropriate action against this gross violation of privilege. Honorable Member, have you given notice of it earlier? You may give the due notice along with the newspaper cutting, and I shall consider it. You just cannot spring a surprise on me like that. Madam, I have already given you its notice at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now papers to be laid. Minister of Environment and Forestries. Speaker Madam, the environment is not merely a backdrop of our development, it is the foundation of our existence. With a sense of responsibility and in accordance with Section 38S and 38P of Wildlife Protection Amendment Act, I seek permission to lay on the table a copy in both English and Hindi of the following documents. First, National Action Plan on Climate Change Youth Engagement Report. Second, Annual Forest Survey and Conservation Statement 2024 and 25. Third, Sustainable Livelihoods and Green Job Schemes Progress Update. Let this not just be paperwork but a pledge to protect what protects us. Let us act with urgency, clarity and purpose. Minister of Textiles, please. Madam, I request to lay on the table a copy of each of the following notifications. First, annual report on the performance of the textile of year 2024 and 2025. And second, vision of its program, vision of production of cotton, its product progress report. And last but not the least, technical textile promotion strategy. Secretary General, to report the message received from the upper chamber. Sir, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. In accordance with provision of rules and conduct of business in the Upper Chamber, I am directed to enclose a copy of the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, which has been passed by the Upper Chamber as its meeting held on August 8, 2023. Secretary General, to lay on the table of the House a copy of the bill as passed by the upper chamber. Sir, I lay on the table of the House a copy of the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, which has been passed by the upper chamber. Honorable members, I have to make an announcement on my own and behalf of the House. It's my pleasure in extending our warm welcome, Excellency Kenji Tanaka, Speaker of Japanese Parliament delegation, who is on visit to India as our honorable guest. The other members of delegations are Ms. Nomi Koshi and Ms. Akari Sato. It is a high-power delegation which arrived on 17 July 2025 and is now seated in special box. We wish a very happy and fruitful stay in our country. We also want to convey our warm greeting to His Majesty the Emperor of Japan, Prime Minister Fumio Kishida, and the resilient and innovative people of Japan. Now, let's take up calling attention motion. Ms. Shruti Singh and Ms. Yeshi Yadav, please call the attention of the House.
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामले की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि हमारे अन्नदाताओं के टूटते सपनों और बिखरते परिवारों की दर्दनाक हकीकत है। फसलों को जब खून पिलाना पड़ जाए, खेती भी तब जहर उगाना सीख जाए। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में किसान आत्महत्याओं में लगातार वृद्धि हुई है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 11,290 से अधिक, मैं फिर से कहना चाहूंगी 11,290 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। इनमें 5,207 किसान और 6,083 कृषि मजदूर थे। क्या ये हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है? कर्ज का बोझ, फसल का उचित दाम न मिलना, मौसम की मांग और सरकारी नीतियों का अपर्याप्त होना, ये सब मिलकर हमारे किसानों को इस भयावह कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरा सरकार से सीधा प्रश्न है, क्या सरकार इन आंकड़ों को गंभीरता से ले रही है? क्या सरकार किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए किसी गंभीर कार्य योजना पर कार्य कर रही है या केवल कागजी खानापूर्ति कर रही है? कर्ज का बोझ है सिर पर, नींद नहीं है आंखों में। कर्ज का बोझ है सिर पर, नींद नहीं है आंखों में। हर सुबह नई मौत का मंजर देखती है। Miss Shruti Singh, please. अध्यक्ष महोदय, देश में आजादी के अमृतकाल का उत्सव मनाया जा रहा है। यह कैसा अमृतकाल है जिसमें देश का अन्नदाता ने सरकार के उद्देश्य का शिकार होकर मौत को गले लगाया है। कमर तोड़ मेहनत कर देशवासियों का पेट भरने वाला किसान आज खुद 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। अधिकांश छोटे सीमांत किसान आज भी सरकार द्वारा किसान हित में चलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। ऐसे में कर्ज का बोझ, साहूकारों की धमकी और परिवार की जिम्मेदारी उसे अंदर से तोड़ देती है और वह जिंदगी की जंग को हार जाता है। वादे से सुनहरे नियत ही नापा, किसान की किस्मत में थी खाका और खा। कर्ज की दलदल में फंसता जाए अन्नदाता, कौन सुने उसकी कर्म पुकार, कौन बने उसका त्राता। सरकार की नीतियाँ कागजों पर अच्छी दिखती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन निराशाजनक है। मंडियों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिचौलिए अब भी हावी हैं। ऐसे में किसान कहाँ जाए? एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करता हूँ। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने हर सितम को स्वीकार किया है हमने हर जख्म को गुलजार किया है, किस्मत का हर सितम स्वीकार किया है। माननीय सदस्य ने जिन आंकड़ों का जिक्र किया है वे चिंताजनक अवश्य है, परंतु सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण माफी योजनाएं और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कुछ ऐसे ही प्रयास हैं। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जुलाई 2025 तक 10 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2024 में 1,18,33,330 किसानों को बीमा कवर किया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक किसानों को 1,52,500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। हम किसानों को तकनीकी सहायता, बेहतर बीज और उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनकी आय बढ़ सके। हम मानते हैं कि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन हमारी सरकार इन पर लगातार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष केवल नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहा है। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा है और इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जो रात भर जागे हैं सवेरा भी वही देखेंगे, ये मेहनत रंग लाएगी खुदा भी देखेंगे। हमारा लक्ष्य केवल तकनीकी राहत देना नहीं बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। ई-नाम पोर्टल, किसान उत्पादक संगठनों का गठन और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी पहले किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान कर रही है और बिचौलियों की भूमिका को कम कर रही है। ये सही है कि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन उन पर काम हो रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
हम विपक्ष से भी रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि हम सब मिलकर अपने अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली ला सकें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कोई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उन्हें इस संकट से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। Next, calling attention, Shri Divya Tiwari, please. हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय ऑपरेशन सिंदूर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या न सिर्फ देश को झकझोर दी है बल्कि हर भारतवासियों के दिल में दर्द और आक्रोश की लहर दौड़ा दी। उन शहीदियों का खून अभी भी हमारी जमीन पर गवाह है कि हम सभी देश के लिए कितने उत्तरदायी हैं। सरकार ने अपने स्तर से जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने कड़े कदम उठाए जाने का दावा किया गया। हिंदुस्तान की सेना ने अपनी वीरता और कुर्बानी से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान के डीजीएम को खुद व्यक्ति गुहार लगाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को समर्थन तो मिला, क्या हम इस हृदयविदारक घटना की असली दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचा पाए? क्या हमारी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा तंत्र इतने बड़े हमले को रोकने में असफल क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? 140 करोड़ भारतीयों का दर्द, युवाओं की आशाएं, शहीदों के परिवार की उम्मीदें जवाबी कार्रवाई तक सीमित रह जाएंगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की असली सच्चाई सामने लाए, सुरक्षा तंत्र के दोषियों को कड़ी कार्रवाई दें, शहीदों के परिवार को मात्र संतावना नहीं बल्कि न्याय और भविष्य की गारंटी दें। हर मुश्किल का हल होता है ये दुनिया कहती है, हर मुश्किल का हल होता है ये दुनिया कहती है, पर टूटते दिलों की तसल्ली अक्सर अधूरी रहती है, पर टूटते दिलों की तसल्ली अक्सर अधूरी रहती है, पर आपने तो तसल्ली दी ही नहीं। Honorable Defense Minister, please. माननीय अध्यक्ष, मैं अपने विपक्ष के साथी द्वारा उठाए गए विषय की गंभीरता को स्वीकार करता हूँ। पहलगाम हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों के अंदर आतंकवादियों द्वारा की गई नृशंसतापूर्ण हत्या द्वारा हम सबके लिए नहीं केवल बल्कि परम संपूर्ण मानवता के लिए एक भयावह त्रासदी है। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य का शिकार हुए सभी पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को समाज में कड़ा जवाब दिया। सेना ने तीनों अंगों के अतुलनीय समाजनीय और कौशल दिखाते हुए आतंकवादियों के ठिकाने तथा पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक प्रहार कर दुश्मन को संपूर्ण लेने के लिए मजबूर कर दिया। भारत की कार्रवाई को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। इस कार्रवाई में हमारा कोई भी सैनिक या संसाधन ऑपरेशन में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इस अभियान में 9 आतंकी ठिकानों को 22 मिनट की कार्रवाई में सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और 100 से अधिक आतंकवादियों के ट्रेनर्स एवं मेजर्स को मार गिराया गया। अध्यक्ष महोदय, सेना की क्षति या अभियान की बारीकियों को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। देश अपने सैनिकों पर गर्व करता है और सब कुछ निर्धारित रणनीति के अनुसार ही करता है। ऑपरेशन सिंदूर बिना किसी बाहरी दबाव के तय राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य प्राप्त होने के बाद ही स्वयं भारत ने पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया है। सीज़फायर में किसी मीडिएटर या दबाव की बात पूरी तरह निराधार है। मंत्री जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलते कि आपका मंत्रालय देश की सुरक्षा में विफल हुआ? सब कर रहा है। हमारी सेना ने पाकिस्तान की ओर से की गई मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और द्वारा पूरी तरह नाकाम करा गया। भारत की संपत्ति या नागरिकों को भी नुकसान नहीं पहुंचा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेना ने सभी आतंकी संरचनाओं को ध्वस्त तो करा बल्कि दायरे में और सीमित दायरे में रहने के नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए किया गया। ये कार्रवाई हमारी गैर-उद्देश्यक, केंद्रित और मापी गई थी। सिंदूर नाम नहीं बस अभियान का ये श्रृंगार था मातृभूमि की शान का। पाक की नापाक साजिश टूटी, कर्ता की भाषा बंदूक से फूटी। संवाद नहीं अब समर का वचन, भारत नहीं झुकेगा, यही तक प्रण। धन्यवाद।
Honorable Minister of Road Transport and Highways to introduce the bill. Minister of Road Transport and Highways. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हमारे देश की सड़क यात्रा को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं सुविधा विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। The question is that leave be granted to the Minister of Road Transport and Highways to introduce the Travel Bill 2024. Those who are in favor will please say aye. Aye. And those who are against it will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Minister of Road Transport and Highways, please introduce the bill. महोदय, मैं सड़क परिवहन सुरक्षा एवं सुविधा विधेयक 2024 को प्रस्तुत करता हूँ। Now the House will take up consideration of the Road Transport Safety, Smoothness and Uninterrupted Travel Bill 2024. Minister of Road Transport and Highways, please. महोदय, भारत आज के समय में सड़क दुर्घटनाओं, यातायात जाम, वायु प्रदूषण और सड़क अवसंरचना की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्ष 2024 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,80,000 लाखों लोगों की मौत हुई, जिनमें से 66% युवा 18 से 34 वर्ष तथा 10,000 स्कूली छात्र सम्मिलित थे। महोदय, हमें इन आंकड़ों की धांधलीबाजी में ना फंसाएं। ये सब 100% झूठे हैं, झूठे। महोदय, थोड़ा सब्र करिए, वक्त आने पर मैं आपकी सारी चिंताओं को दूर करूंगा। हमारी सरकार आपसे हर चीज में आगे है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे बिल। महोदय, हमारी सरकार नई तकनीकियों और व्यवस्थाओं का समावेश करके नया योजना बना रहा है। इस राजनीतिक और प्रामाणिक आंकड़ों पर आधारित योजना प्रस्तुत है। महोदय, इस विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, सड़क सुरक्षा हेतु स्मार्ट सड़क प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत के सभी मुख्य राजमार्गों पर स्मार्ट ट्रैफिक कैमरा, सेंसर एवं अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को अब और भी सख्त किया जाएगा। इसके तहत ड्राइविंग सिमुलेटर और व्यवहार जांच को अनिवार्य किया जाएगा ताकि जिम्मेदार व्यक्ति ही वाहन चला सके। तीसरा, हादसों में घायलों को तुरंत इलाज दिलाने के लिए हर 25 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाएगी। गोल्डन आवर राहत का गठन किया जाएगा और घायलों को कैशलेस इलाज और जल्द मुआवजा मिलेगा। चौथा, सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे देश में नए 25,000 नए 240 स्टेशन। माननीय मंत्री जी, आप एक बात बताइए कि आप नया बिल तो बता रहे हैं, लेकिन उन मामलों का क्या हुआ, उन सड़क दुर्घटनाओं का क्या हुआ जो कि अतीत में है, जो कि हो चुकी हैं? आपने कैसे उसकी आप गारंटी दे सकते हैं कि जो मामले अतीत में हुए हैं, जो दुर्घटनाएं अतीत में हुई हैं, वो आगे भविष्य काल में ना हो? आप इसकी कितनी प्रतिशत गारंटी लेते हैं? महोदय, आप इसी पिछली सोच की वजह से इस जगह नहीं बैठे, तो कृपया शांत रहिए। हम कब तक सब्र करेंगे? आप बताइए, आप हमें सब्र के और झूठे आंकड़ों के बाद जितनी आपकी क्षमता हो उतना सब्र करिए, हम तो विपक्ष में नहीं आने वाले। महोदय, पांचवा, हमारी सरकार नई तकनीकों का इस्तेमाल करके यातायात को स्मार्ट और सुरक्षित बनाएगी। इसके तहत ITMS, AI और IoT जैसी तकनीकों से सड़क योजना और भी सुविधा और भी सुधारा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्यगण दलीली मतभेद से ऊपर उठकर इस विधेयक का स्वागत करेंगे और सरकार का सहयोग करेंगे, न कि पिछड़ी सोच का। इसी के साथ मैं यह प्रस्तुत करता हूं कि सड़क परिवहन एवं सुविधा विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। धन्यवाद। A bill has been presented for consideration of Safe, Secure and Comfortable Road Transport Bill 2024. Ms. Akriti Srivastava, please. Honorable Madam, I appreciate the government for introducing this bill. Safe and secure road transport is one of our basic needs. The introduction of technology will definitely prove to be helpful in reducing number of road accidents. According to the latest NHAI reports, 28% drop has been observed in number of road accidents on the roads where smart cameras have been installed. I do hope that this bill will prove to be a landmark in bringing favorable changes. It will not only save the lives of people but also contribute for comfortable transportation. Ms. Tanishka, please.
अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने लोक लुभावन विधेयक प्रस्तुत किए जो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है और पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। इस विधेयक के प्रावधानों को व्यवहार में लाने के लिए बृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का उच्चीकरण करना होगा, जिसके लिए विपुल धनराशि की आवश्यकता होगी। इस वर्ष के बजट में इस विशाल धनराशि की उपलब्धता संभव नहीं है। जब मंत्री जी विधेयक के प्रावधानों का उल्लेख कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस अब अच्छे दिन आने ही वाले, किंतु यह भी यथार्थ सत्य है कि सरकार इस विधेयक के प्रावधानों को धरातल पर उतार पाने के लिए गंभीर नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह यह है कि वे जुमलेबाजी छोड़कर गंभीर कार्य योजना बनाकर इस दिशा में प्रयास करें। Ms. Adya Tiwari, please. Honorable Ma'am, first of all, I would like to thank you for providing me a chance to talk on this bill. Introducing digital ticketing and smart systems may create difficulties for poor and elderly citizens who do not have the access to smartphones and internet facilities. This could exclude them from public transport benefits. Moreover, this can also lead to digital divide, where certain sections of societies are left behind. And the government should focus to take every section and every group within the country's growth. Leader of opposition, please. महोदया, इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। देश की सड़कों का केवल 2.1% राजमार्ग है। मैं पुनः कहती हूँ, देश की सड़कों का केवल 2.1% राजमार्ग है, जिनका उपयोग साधन संपन्न लोगों द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में केवल इन पर सुधार होने से बात नहीं बनेगी। लाइसेंस प्रक्रिया को कठोर बनाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आपातकालीन सरकारी व्यवस्थाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। आपातकालीन सरकारी व्यवस्थाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में जन सामान्य कैसे भरोसा करे कि गोल्डन आवर योजना सफल होगी? Minister of Road Transport and Highways, please. अध्यक्ष महोदया, मैंने सभी सदस्यों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है और जिन साथियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जिन साथियों ने इसमें कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी चिंताएं पूरी बेबुनियाद हैं। महोदया, इस विधेयक को पूरी सोच विचार के साथ तैयार किया गया है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मंत्री परिषद के साथियों से भी चर्चा हुई है। यह विधेयक केवल सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को रोकने में मदद नहीं करेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर हमारी सड़कें जाम मुक्त हो जाएं, तो हर 4 मिनट में जा रही जानों को रोका जा सकता है और भारत की जीडीपी में लगभग 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। गोल्डन आवर राहत दल एवं इमरजेंसी वाहनों की सुविधा को जीपीएस ट्रैकिंग से जोड़ा जाएगा ताकि समय रहते मदद पहुंच सके। और महोदया, स्मार्ट टिकट के साथ साथ कागजी टिकट काउंटर और सहायक काउंटर भी रहेंगे ताकि ग्रामीण इलाके के लोगों और बुजुर्ग लोगों को कोई कठिनाई ना हो। और सबसे अहम बात, भ्रष्टाचार पर भी कड़ा नजर रखा जाएगा ताकि हर एक योजना का फायदा सीधे आम जनता तक पहुंच पाए। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, please. अध्यक्ष महोदया, यह विधेयक केवल सड़क सुरक्षा के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व नागरिक सुविधा के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम है। विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी, एक सवाल। आप देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बोल रही हैं, फिर एक बात बताइए, यहाँ पर जब कोई इंसान, कोई बड़े घर का इंसान जो दिन ब दिन कपड़े बदल के पहनता है, नए और ब्रांडेड चश्मे पहनता है, और वहीं आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मेरी पूरी बात सुनिए प्रधानमंत्री जी। मेरी बातों को मत रोकिए। विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने के लिए संसदीय समिति बनाई जाएगी। आशा है कि ये बदलाव भारत को एक नए युग में ले जाएंगे, जहाँ हर नागरिक की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक हो। The question is that the bill related to safe and secure road transport be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. No.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the question is that clauses 2 to 6 stands part of the bill. Though there is one amendment suggested by Ms. Avantika Singh. Ms. Avantika, are you moving it? माननीय महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। The question is that clauses 2 to 6 stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the question is, the clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable Minister of Road Transport and Highways, please. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up private member resolution. Ms. Shreya Nirmal to move the resolution. अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करती हूँ। यह सदन भारत सरकार से आग्रह करता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया उपलब्धियों के बावजूद देश में आम नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता और बजटीय आवंटन को और मजबूत करने हेतु नई एवं ठोस नीतियां बनाई जाएं। स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। विशाल आबादी के अनुपात में एक तो चिकित्सालयों की संख्या बहुत कम है, वहीं दूसरी ओर इनसे दवाओं का अभाव, चिकित्सकों की अनुपस्थिति और कर्मचारियों द्वारा मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार जैसी समस्याएं जुड़ी हैं। निजी अस्पतालों में इलाज अत्यंत महंगा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूँ कि सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएं। ये केंद्र निःशुल्क जांच, टेलीमेडिसिन और दवाएं प्रदान करें, जिससे शुरुआती स्तर पर ही निदान मिल सके। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की मल्टी स्किलिंग और प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, जिससे विशेषज्ञों की कमी दूर हो सके। निजी अस्पतालों व डायग्नोस्टिक केंद्रों में CGHS दरों के अनुकूल शुल्क सूची अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए। निजी अस्पतालों व डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा फर्जी बिलिंग, अनावश्यक जांच तथा बिना मतलब की दवाइयों को खत्म किया जाए और इसके लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण ग्रेवास पोर्टल शुरू किया जाए। प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक स्तर पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएं। ये केंद्र गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं 50 से 90% कम दामों पर उपलब्ध कराएं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, डिजिटल हेल्थ कार्ड और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जैसी डिजिटल पहलों को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु दूरदर्शन, टेलीविजन और सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए, जिससे लोगों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी मिल सके। अध्यक्ष महोदया, इन सुझाव के प्रभावी क्रियान्वयन से आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, पारदर्शी, लोकप्रिय और किफायती बन सकेंगी। साथ ही निजी अस्पतालों व डायग्नोस्टिक केंद्रों के अनुचित व्यवहार पर रोक लगेगी और दवाइयां उचित दामों पर उपलब्ध होंगी। Ms. Vaishnavi Bhatt, please. अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एक दिवा स्वप्न के समान है। यदि परिवार के किसी सदस्य की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाए तो परिवार की संपत्ति बेचकर भी उचित इलाज मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। माननीय सदस्य द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मैं उस संकल्प का समर्थन करती हूँ। Ms. Preet Srivastava, please. अध्यक्ष महोदया, यहाँ मरीजों की भरमार, किंतु दवाओं का आकार है। पर्चियां लेकर घूमते लोग ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ लोगों को मुफ्त इलाज के लिए बुलाया जाता है, फिर जांच के बहाने खूब दौड़ाया जाता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज में होने वाली लापरवाही किसी से छुपी नहीं है।
पैसे वाले लोगों के पास तो प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज करवा लेने का विकल्प है, किंतु गरीब कहाँ जाएंगे? इस बिल में सरकारी अस्पतालों में सुधार लाने की बात की गई है। मैं इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करती हूँ। Minister of Health and Family Welfare, please. अध्यक्ष महोदया, भारत की लगभग 1.4 अरब की विशाल आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारी सरकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 387 से 2024-25 में 780 हुई है। फिर भी डॉक्टर जनसंख्या अनुपात WHO मानकों से कम है। ग्रामीण व दूर दराज क्षेत्रों में यह समस्या और गंभीर है। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक के लिए सुगम, किफायती, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए 5 प्रमुख सुधारों को एक साथ लागू कर रही है। पहले हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का देशव्यापी विस्तार कर रहे हैं, ताकि दूर दराज के इलाकों तक भी समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। दूसरा, निजी अस्पतालों और डिजिटलीकरण, फीस, ट्रांसपेरेंट बिलिंग की ओर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। तीसरा, जन औषधि केंद्रों के जाल से सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ हर गाँव, शहर में मुहैया कराई जा रही हैं। चौथा, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटलीकरण कर प्रत्येक नागरिक को उसकी हक की जानकारी, सुविधा और शिकायत निवारण पहुंचाने की जांच जारी है। मेडिकल यूनिट द्वारा गरीब से गरीब को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रयास जारी है। हमारा उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक दवा, डॉक्टर या सुविधा के अभाव से वंचित न रहे और स्वास्थ्य सेवाएं वास्तव में जन कल्याण के लिए सर्वसुलभ तथा भरोसेमंद बने। हमारी सरकार इन सुधारों के क्रियान्वयन पर हर स्तर पर निरंतर निगरानी भी रखेगी। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार निश्चय ही विचार कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। मैं अपने माध्यम से माननीय सदस्य से उनका संकल्प वापस लेने का अनुरोध करती हूँ। Ms. Shreya Nirmal, please. अध्यक्ष महोदया, मैं अपने संकल्प पर माननीय सदस्य द्वारा दिए गए आश्वासन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। इस सरकार द्वारा उठाए गए अभी तक के सारे कदमों और माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प वापसी लेने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। Has the honourable member leave of the house to withdraw her resolution? Yes. The resolution by leave of the house is withdrawn. Discussion is over for the day. Now the house is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.